Good morning, dear students. In the previous lecture, we have completed about the whole process of digestive system. That is, how the digestion takes place and what are the substances that are going to be digested in the buccal cavity. Then after we have discussed that what substances are going to be digested in the stomach, what enzymes are present in the gastric juices, and lastly we have discussed about the digestion taking place in the intestine, in which a major role was played by the bile juice from liver, pancreatic juice from pancreas, and the intestinal juice released by intestinal mucosa itself. We lastly said that all the undigested and unabsorbed substances are now going to enter into the large intestine. जो भी सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में अनएब्जॉर्ब्ड रह गई हैं, अनडाइजेस्टेड रह गई हैं, ये सारी चीजें एंटर होंगी इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और उसे कहा जाता है सिकम. राइट, तो सिकम में एंटर होने से पहले इट विल हैव टू पास थ्रू अ वाल्व व्हिच इज नोन एज ileocecal valve. So here the undigested and unabsorbed substances enter into the large intestine at cecum through ileocecal valve. Right? So what is going to happen is, जो भी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड रह गई है, अनएब्जॉर्ब्ड रह गई है, ये चीजें एंटर होंगी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में. तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये चीजें एंटर होती है तो ये पहले पार्ट में एंटर होता है, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या था, सिकम, which was a small pouch like structure, small bag like structure. Okay, तो सिकम में एंटर होने पर पहले क्या आता है, the first thing it has to cross before entering the cecum is the ileocecal valve, and this ileocecal valve will prevent the backflow of the feces. क्योंकि हमने बात की थी कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, फीसिस कहा जाता है. तो ये फीसिस के बैकफ्लो को, मतलब ताकि ये वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए, इस बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है इलियोसिकल वाल्व. अब एक बार यहाँ आ जाने के बाद दिस फीसिस, द फीसिस विल नाउ enter colon and then gets stored in the rectum. मतलब ये एंटर किस में होगा, कोलॉन में. कोलॉन के तीन पार्ट्स थे, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन. और कोलॉन जो होता है उसकी मूवमेंट्स होती है जिसमें वाटर का पोर्शन जो होता है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है और बाकी का मटेरियल आगे की तरफ मूव होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, फीकल मैटर है वो. एंड फाइनली दिस फीसेस आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रेक्टम. एंड नाउ देयर विल बी अ वॉलंटरी रिफ्लेक्स, अ वॉलंटरी एक्शन बाय विच this fecal matter will be removed out of the rectum through the anal opening. So now the feces will be removed through voluntary opening of anus. तो वॉलेंटरी ओपनिंग ऑफ एनस मतलब ऑफ द एनाल ओपनिंग. तो एनस जो है वो एक वॉलेंटरी ओपनिंग रहता है वहां पे. वॉलेंटरी मतलब ऑन व्हेन द फीकल मैटर रीचेस द रेक्टम there is an urge to remove the waste. That is, you are having a feeling that now it is time to remove the fecal matter from your body.
So after that there will be a voluntary reflex. Voluntary matlab you will be able to regulate the opening of the anus, and then after the fecal matter will be removed out through the anal opening. The removal of the feces is known as, this process is known as defecation. ये fecal matter को जो हम remove करते हैं through the anus, इसे क्या कहा जाता है? defecation. Students, यहाँ पे इसे excretion नहीं कहा जाता. excretion कब कहते हैं? जब बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को हम एलिमिनेट करते हैं तो उसे एक्सक्रीशन कहते हैं. यहाँ पे हम जो वेस्ट रिमूव कर रहे हैं वो है डाइजेस्टिव वेस्ट, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है डेफिकेशन. अब बात करते हैं कि रेगुलेशन कैसे होता है. तो रेगुलेशन के लिए द फर्स्ट थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज दैट whole gastrointestinal tract is regulated by two systems, nervous system and endocrine system. So the GI tract मतलब gastrointestinal tract is regulated by neural and hormonal mechanism. मतलब दोनों ही सिस्टम इन्वॉल्व है. हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है वो पूरे ही प्रोसेस में नर्वस सिस्टम जितनी इम्पोर्टेंट है उतने ही इम्पोर्टेंट हार्मोनल सिस्टम मतलब एंडोक्राइन सिस्टम भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है. राइट. तो सबसे पहले द साइट और यू कैन से द स्मेल और presence of food in buccal cavity stimulates the saliva secretion. क्या लिखा है हमने? जब हम खाना देखते हैं, जस्ट हम खाने के बारे में सोच रहे हैं या खाना हम देख रहे हैं या खाना हम माउथ में अपनी बकल कैविटी में रखते हैं, ऐसा कुछ भी करने से हमारी बॉडी में हमारे माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है. जस्ट यू थिंक अबाउट द पिज्जा एंड यू आर हैविंग सलाइवा सिक्रीशन इन योर माउथ. राइट. तो ये जो है दैट इज अंडर न्यूरल मैकेनिज्म. द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the release of the saliva on just thinking or looking at the food. Right. Same way the release of gastrointestinal secretion is under control of न्यूरल सिस्टम. मतलब हमारी बॉडी में खाना बकल कैविटी में रखा है और तभी ही स्टार्ट हो जाता है द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस आल्सो एंड रिलीज ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस. मतलब हमारे स्टमक का भी जो सिक्रीशन है, राइट, HCl है, पेप्सिनोजन है, गैस्ट्रिक जूस है पूरा, वो गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज स्टार्ट हो जाता है और इंटेस्टिनल जूस भी रिलीज हो जाता है, एंड दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर नर्वस सिस्टम. The movement of the muscles, the muscular movements in the alimentary canal is also regulated by the neural system. Right? हम हर जगह पे पढ़ा है हमने कि स्टमक होता है तो उसके चर्निंग मूवमेंट होते हैं, इंटेस्टाइन होता है तो उसके भी मूवमेंट्स होते हैं, राइट, मिक्सिंग मूवमेंट्स होते हैं, इसोफेगस के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं. तो ये सारे ही जो मूवमेंट है वो मसल्स के मूवमेंट है और ये मसल्स के मूवमेंट भी नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है. द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एंड intestinal juices
also done by hormonal system. हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें से कई तरह के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, सिक्रेटिन है। तो ऐसे कई सारे हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं, ये हॉर्मोन्स जब रिलीज होते हैं दे स्टिम्युलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड द इंटेस्टिनल ग्लैंड टू रिलीज देयर सिक्रीशन। मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड में से रिलीज कब होगा सिक्रीशन? व्हेन अ पर्टिकुलर हार्मोन विल इंस्टिगेट इट टू रिलीज। तो हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें हार्मोनल सिस्टम का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना नर्वस सिस्टम का है. So that was about the regulation of the digestive system. Next we talk about absorption of food in our digestive system. So once we have completed the whole process of digestion as well as how the digestive system will be regulated by the nervous as well as hormonal control, now we talk about the topic that is absorption of the digested products. हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सारे ही प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट तो हो चुके हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स में से सबसे सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो चुके हैं. अब क्या करना है? नाउ इट इज टाइम टू एब्जॉर्ब ऑल दोज डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स. तो जो सारी चीजें डाइजेस्ट की हुई थी अब उन्हें क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है. तो हु इज गोइंग टू एब्जॉर्ब इट? Maximum of the digested products will be absorbed by the mucosa layer of intestine. So intestinal mucosa will be absorbing these substances and it will be passing it on to the nearest blood vessel, blood capillary or lymph capillary. मतलब जो भी फूड सब्सटेंसेस जो है वो एब्जॉर्ब सबसे पहला करेगा कौन? लाइनिंग ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोजा. पर इंटेस्टिनल म्यूकोजा के बाद आता है सब म्यूकोजा एंड दिस लेयर हैज प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज. So ultimately that absorbed products are going to be sent into the blood or lymph. So absorption is the process in which end products of digestion are absorbed by intestinal mucosa and then enters ब्लड और लिम्फ. क्या हो रहा है यहाँ पे? जो भी प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब हो रही है वो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोजा. नाउ दीज म्यूकोजा सेल्स डू नॉट कीप दिस प्रोडक्ट विद देमसेल्व्स. इंस्टेड दे विल गिव इट टू द नियर बाय ब्लड और लिम्फेटिक वेसल एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. फिर हमारे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ब्लड में ट्रैवल करेंगे एंड विद द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दीज प्रोडक्ट्स विल बी टेकन अप बाय द टिश्यूज. मतलब अल्टीमेटली ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ पे एंटर होंगे? बॉडी के हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में. उस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन. अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ अब्जॉर्प्शन की, ठीक है? तो एब्जॉर्ब हो गया और एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? इंटेस्टिनल म्यूकोजा के सेल्स and they are giving it to either blood or to the lymph, whatever capillary is nearby. So which type of substances are going to be absorbed and how? So there the absorption can be done by either active transport, passive transport और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. राइट, हमने अभी तक पढ़ा हुआ ही है कि चीजें एब्जॉर्ब कैसे होंगी? आइदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है,
पैसिव से, और पैसिव में ही टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो पैसिव में सबसे कॉमन मेथड डिफ्यूजन है और ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो सम substances like मोनोसैकेराइड्स में सबसे कॉमनली आ जाता है ग्लूकोज। सब्सटेंसेस लाइक मोनोसैकेराइड मतलब जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज एज वेल एज सम एमिनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स like chlorine all are absorbed by simple diffusion, absorbed by simple diffusion, right? तो कई ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जैसे कि ग्लूकोज है, सारे अमीनो एसिड्स नहीं, थोड़े बहुत अमीनो एसिड्स जो होंगे जो चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होंगे, और आयंस जैसे कि क्लोरीन, ये किस मेथड से एब्जॉर्ब होते हैं? दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स अगर वो ब्लड में कम है तो इट विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, some amino acids and some chlorine molecules can simply enter or absorb by simple diffusion method. Secondly, some substances can even be taken by facilitated diffusion, that is substances like fructose and some amino acids are absorbed by help of carrier proteins, by the help of carrier proteins. तो carrier proteins की मदद से absorb होना मतलब this method will be facilitated diffusion, क्योंकि इस मेथड में carrier proteins involve हुए हैं, right? Simple diffusion में कोई भी तरह के proteins involve नहीं होते, simply higher to lower concentration with the gradient. ये भी with the gradient ही होता है, but यहाँ पे proteins involve होते हैं. Water absorbed by simple method, that is osmosis. Water की जो entry होगी that will be through the osmosis method, right? और some glucose molecules, some glucose and some amino acids and Na plus is taken by active transport. मतलब थोड़े बहुत ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पैसिवली भी जा सकते हैं। एक बार ग्लूकोज अंदर जाने के बाद ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई हो जाता है तो बाकी के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कैसे एंटर होंगे? तो दे विल बी एंटरिंग बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो सम ऑफ द ग्लूकोज, सम ऑफ द एमिनो एसिड्स एंड Na+ like electrolytes will be entering through active. So we have seen that some will be entering by simple diffusion, some will be entering by facilitated diffusion, and some will be entering by active transport. Water will be taken up by osmosis. Now all these substances can be taken, but what about the fats and the glycerol? तो fats और glycerol के लिए fats and glycerol are nearly insoluble. कैसे होते हैं ये? Insoluble होते हैं, इसलिए easily directly absorb नहीं होते. ग्लिसरॉल तो फिर भी स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है तो थोड़ा बहुत ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट फैटी एसिड्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं होते. सो दीज फैटी एसिड्स आर द फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स which are known as micelles. पहले किसमें कन्वर्ट होते हैं? मिसेल्स में कन्वर्ट होते हैं. Now this micelles are absorbed by
intestinal mucosa by active transport. राइट? क्या हुआ कि सबसे पहले तो फैटी एसिड्स जो हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स. इन ड्रॉपलेट्स को क्या कहते हैं? मिसेल्स कहते हैं. अब मिसेल्स जो है वो एक्टिवली अब्सॉर्ब हो जाएंगे इनटू द इंटेस्टिनल म्यूकोजा. इंटेस्टिनल म्यूकोजा सेल के अंदर, इन द म्यूकोजल सेल they are bound by protein granules. बाउंड बाय प्रोटीन्स मतलब फैट है पर सराउंडिंग क्या है? प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स है. मतलब अ फैट गेट्स सराउंडेड बाय प्रोटीन ग्लोब्यूल एंड सच अ स्ट्रक्चर, दे आर बाउंड बाय प्रोटीन्स. सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, such structure is called chylomicrons. It is called chylomicrons, and these chylomicrons now enter nearby lacteal. Enter the lacteal मतलब lymph vessel. ठीक है? तो फैट्स का एब्जॉर्प्शन थोड़ा अलग है. पहले क्या हुआ? छोटे ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो गए जिन्हें कहते हैं मिसेल्स. मिसेल्स को एब्जॉर्ब किसने किया? इंटेस्टिनल म्यूकोजा सेल ने. म्यूकोजा सेल के अंदर मिसेल्स आने पर दीज मिसेल्स गेट कोटेड अप विद अ लेयर ऑफ प्रोटीन. मतलब अंदर फैट्स है और ऊपर प्रोटीन से कोट हो गए. तो ऐसे ग्लोब्यूल्स जिनमें प्रोटीन्स और फैट्स कंबाइन हो उन्हें क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स. और फिर ये काइलोमाइक्रॉन्स नियर बाय जो भी लैक्टियल है मतलब लिम्फेटिक वेसल है उसमें एंटर हो जाएंगे. सो दैट इज हाउ फैट्स आर एब्सॉर्ब. राइट? कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मोनोसैकेराइड्स कैन बी सिंपली टेकन बाय डिफ्यूजन और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सम आर टेकन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. एमिनो एसिड्स कैन आल्सो बी टेकन बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. राइट? तो सारी ही चीजें ऐसे एब्सॉर्ब हो जाएगी. फैट्स का एब्सॉर्प्शन थोड़ा अलग है. इसके अलावा हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन माउथ में भी होता है. सो इन योर टेक्स्ट बुक यू हैव अ स्मॉल टेबल इन विच द लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस इज गिवन विच आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन माउथ. हमारा जो माउथ है उसमें थोड़े बहुत ड्रग्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं. राइट? तो माउथ में ड्रग्स मतलब कई ऐसे ड्रग्स आते हैं जो सिर्फ टैबलेट्स, वी हैव टू कीप इट जस्ट बीनीथ आवर टंग एंड देन आफ्टर इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड ऑन इट्स ओन. राइट? तो ऐसे भी टैबलेट्स आते हैं, मेडिसिन आते हैं, ड्रग्स आते हैं जो डायरेक्टली कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं? बकल कैविटी एब्जॉर्ब कर लेती है एंड इट एंटर्स इनटू द लोअर ब्लड कैपिलरीज जो माउथ में ही लोकेटेड होती है. ठीक है? इसके अलावा माउथ के बाद स्टमक में तो सम अमाउंट ऑफ अल्कोहल कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक. इसके अलावा वाटर भी एब्जॉर्ब हो सकता है इन द स्टमक रीजन. इंटेस्टाइन में तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, फैट्स सब कुछ इंटेस्टाइन में ही, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अब्सॉर्ब हो रहा है. और लार्ज इंटेस्टाइन में सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स कैन बी एब्सॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन. These absorbed material is now going to enter into blood में तो आ ही चुका है. अब ब्लड में से ये कहाँ जाएगा? It will be distributed to the tissues. And tissues will be utilizing these carbohydrates, amino acids and other substances. And this process is known as assimilation. This process is known as assimilation. So that just one or two points, you just go through your textbook, you will be able to understand those concepts. And next we will talk about the disorders associated with the digestive system.